ओके, जैसे हमने पहले अभी प्रैक्टिस में हमने क्या किया कि स्टोरी लिखा है, पीपीटी राइट कर लिया है आप लोगों ने। अभी इसके ऊपर आपको अपना स्टोरी नरेशन करना है। स्टोरी नरेशन में हमें करना क्या होता है कि आपको अपने सीट पे खड़ा होना होगा, या तो आप बैठे बैठे कीजिएगा, बोर्ड के अंदर आपको सीट पे खड़ा होना होगा और 1 मिनट तक आपको टाइम मिलेगा, उसमें आपको अपना स्टोरी को रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करना शॉर्ट फॉर्म में, मोटा मोटा शॉर्ट फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म उसको बताना है, लंबा नहीं बताना। जैसे आपने लिखा होगा एज इट इज वो सारा नहीं बताना, आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताना है। अगर आप ब्रीफ का मतलब नहीं समझते तो इसको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि ब्रीफ का मतलब है कि यहाँ पे आपको संक्षिप्त में शॉर्ट फॉर्म में अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करना होता है। 1 मिनट तक आप बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट खड़ा होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा अपनी स्टोरी को, 1 मिनट तक बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंड सो ऑन सभी कैंडिडेट्स बताएंगे। यहाँ पे मैं सबको चेस्ट नंबर दे देता हूँ। चेस्ट नंबर 1 यहाँ पे है रजत, चेस्ट नंबर 2 यहाँ पे है धनंजय, 3 है सुश्रुत, 4th है अंजू, 5th नंबर है नवप्रीत और 6th नंबर है चिराग। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में सब लोग बोलने वाले हैं। वन पहले चेस्ट नंबर 1 बोलेगा, फिर 2 बोलेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड 6 बोलेगा। तो सबसे पहले आप बताएंगे ब्रीफ स्टोरी के बारे में। स्टोरी को सुनने से पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा। सब बच्चे अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर देंगे, जैसा भी आप अपने बारे में बताना चाहते हैं आप बताइएगा। तो ऑल आर रेडी गाइस? यस सर। ओके ठीक है। सब चेस्ट ओके ठीक है, बाकी सब माइक ऑफ रखेंगे एंड रजत से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, चेस्ट नंबर 1, गिव योर इंट्रोडक्शन एंड narrate your story in a brief. Start. Thank you, sir. My name is Rajat. I am 22 years old. I came from village Farl nearby Pumpri town. I have passed my graduation from DAV College Pewa with NCCC certificate. We are I came from small family. We are 5 members in it. Me and my brother, my mom and my dad and my grandmom. I love to reading book and I enjoy to playing volleyball and boxing match also and watching also. I want to become an army officer in Indian Army. To achieve my aim, I am preparing CDS by Officer Defense Wing. Thank you. Okay, well, nice, Rajat. You introduce yourself very nicely. So please give a brief introduction about your picture perception, your story. Please start. You have just 1 minute. Yes, sir. In this story, 5 member. One is a hero named Azad, 25-year-old. Okay, stop, Rajat. In costume. Stop, Rajat. आपको देख के नहीं बोलना। ये जो स्टोरी आपने अभी जस्ट लिखा है 10 मिनट पहले। जी सर, लिखिए। उसको बिना देख के पढ़ना है आपको, ठीक है? चलिए बताइए। A boy named Azad is Sarpanch of village. He tells to villager about advantages of bank and library. He will going to open bank and library in their village. He suggests to villager to open their account in this bank. Okay, ठीक है। Next candidate. Stop. Next. Test number 2. Introduce yourself, then introduce your story. Good morning, sir. My name is Dhananjay Kumar. I am 20 years old. Currently, I am pursuing BSc in Computer Science from DAV College, Chandigarh, and I belong to District Karnal, State Haryana. So my father is a principal in a CBSE school, and my mother is a teacher in a CBSE school. And so my hobbies are to watch and play basketball and play cricket in my leisure time. So my aim is to join the Indian Air Force because I have always been attracted by the sky and I want to fly. That is my aim, sir. And to achieve it, sir, I have started preparing for UPSC exam, CDS, and AFCAT exam. Okay. Well, Dhananjay, give us just brief introduction about your story. Sir, in my story, I perceived 5 characters from the picture.
and the hero of my story is SJM Aditya Singh. When SJM Aditya Singh visited the village Rampur, he met with the Sarpanch and few other people to discuss the problem of water scarcity that their village was facing. So to solve this problem, and the problem occurred because of the drought, due to which they could not store water, and the canal was running dry because the water of the dam was stopped by another state. So to so SGM Aditya ensured regular supply of water trucks to the village until a permanent solution was found. So SGM took this matter to the higher authorities, and a cabinet meeting was held between the two states, and finally the other state opened the dam, due to which the Okay, problem next of water candidate. scarcity was Next. solved. Test number 3. Give your introduction. Yes, sir. I am Fursuddin Mormon and I am 17 years old. I Okay, came stop. from Sildor, a small village, district. अपना ईयरफोन रिमूव कीजिए, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ईयरफोन रिमूव कीजिए सुश्रुत, आप ईयरफोन हटा दो, फोन से भी निकाल दो उसको। सर अभी ठीक है क्या? सर अभी ठीक है? अब ठीक है, बोलिए। Okay, sir. Sir, I am Fursuddin Mormon and my years is 17 years old. I came from Sildwar, a small village near Kuzbar city in Kuzbar district. Now I am reading in class 10 from Government Model School, Shitalkosi. And I am now a student. I came from a single family. There are 4 members, my father, mother, and sisters, and me. And I love for study books and play football, volleyball, and touring. And my aim is become an army officer. That's all. Okay, nice Susrut, and please give a brief introduction about your story. So my story goes to through him. There are 5 members in the pictures. They are all genders is men. And my hero's name is Purushottam. His age is 28 years old, and he is a male character. He came from a engineering college, and he came namely he came for telling his he came from his village telling the villagers how to develop their village with the advanced technology. That's all. Okay, that's good. Next candidate, please introduce yourself. Test number 5. Yes, sir. Good morning, guys. I am Anju from Yamuna. I am pursuing my graduation from Kurukshetra University, and I am 20 years old. I am also NCC cadet. We are 5 members in my family. My parents, 1 brother, 1 sister, and also me. I want to become an army officer. To achieve my goal, I am preparing for CDS examination on online platform by Manoj Kaushik sir, and that's all about me. Nice, Anju. There are Introduce your story. You have just 1 minute, please. yes, there are 6 male members in the stories and 1 animal. There are 6 male members in the story and 1 animal. And the main character of the story is Sohanlal, aged 40 years around. He is the aged person of the village, and the second is Mohanlal. He is a teacher. He came in his village and want to join and joining his village school, and he is asked Sohanlal to the way of school, so he want to join as a teacher of the village. And Mohanlal asked him where he came from and what is his name and etc. So Mohanlal asked the way of school, and अच्छा, वो छत पे लिखा हुआ था क्या? ऊपर देख के आप लोग पढ़ रहे थे? ये छत पे लिख दिया गया, पेज चिपका दिया हुआ आपने ऊपर छत के ऊपर? ऊपर नहीं देखना, हमेशा अपने ग्रुप मेंबर की तो देखना है, मतलब आपको भी कैमरे में देखना चाहिए अपने, बाकी जो आपके साथ में जो पेज नहीं हो पाता, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इस वजह से। हाँ, वो बिल्कुल आ गया है तुम्हारा, देख लिया मैंने। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। नवप्रीत, अपना माइक ऑन करो। 1 मिनट रुकिए। टेस्ट नंबर 1 कौन था? रजत था। ओके,
एक मिनट. Okay, start now, please. Gentlemen, I am Napir Singh and I am 18 years old. I have passed 12th from CBSE board with non-medical stream through Sparkling Kids, the Foundation Patna. I came from a joint family. There are 9 members in my family: my father, mother, my younger brother, 3 cousins, my aunt, my sister-in-law, including me. I love to reading books, watching movies, and knowing facts about the nature. I am preparing for serious examination because my aim is to become an army officer, and also I am preparing for SSB interview through NGS Academy and through Officer Defense Wing. Okay, nice. Now, please give your introduction about the story. Gentlemen, I perceive with 5 characters in my story. My hero Suresh want to aware the villagers about the COVID. So, gentlemen, my story is like this. Suresh met with the village sarpanch and asked him to allow him about to give a speech to villagers about the COVID. That's why the village sarpanch also allowed him to give a speech to villagers about the COVID in the village panchayat bhavan. Also, Suresh called his friends to help him, and after that, he announced in the village that there will be a speech about the COVID at 11 a.m. So all the villagers must gather there. All the villagers gather there at a proper time, and his friends sanitized every villager on the entrance. After that, Suresh gave a wonderful speech on the COVID and told about to the villagers that how harmful is the COVID and to take precautions about COVID like wearing mask and don't to shake a hand with anyone, sanitize a hand at proper interval of time, and don't go at a relative's home. All the villagers understood him and started taking precautions. After that, Suresh and his friends feel satisfied. Thank you. Okay, next is number 6. Good morning, sir. My name is Chirag and I am 17 years old. And I have passed my 12th examination in a non-medical stream of CBSE board from RKSD Senior Secondary Public School, Kathal. And now I am doing my graduation in BSc Computer Science from RKSD College, Kathal. I live in Kathal city of Haryana state. And my family have 4 members, including me, my father, my mother, and my younger sister. And my hobbies are watching anime, listening music, etc. And my aim is to become an officer in the Indian Armed Forces. And for this, I am studying from the YouTube channel of the Unacademy for the ND examination. And to pass SSP interview, I am studying from the YouTube channel of the Officer Defense Wing. Thank you. Okay, nice, Chirag. Introduce your story. So my story's hero is Suresh. He's a 22-year who had recently completed his graduation and came to his village. But he came to know that his village, that the people in his village are mostly illiterate and are unable to read and write. So he decided to start the classes for the adults of the village to teach them how to read and write. But some persons, including the head of the village, opposed this decision, and he tell them about the importance of studying and reading and writing. So he convinced all of them to start the classes in the village, and he arranged some necessary materials, including the boards, markers, and the books, etc. And he taught them all to read and write, and the people of the village thanked him, and he is satisfied. Thank you. Okay, nice, gentlemen. You all have your wonderful story narration here. Gentlemen, you all make the story in a different themes. So I give you just 10 minutes and make a common group story. I repeat, I give you just a 10 minutes and make a common group story, and open your mics, everybody. And now you can start your group discussion. Dhananjay, open your mic. Everybody open your mics first. Susrut, open your mic. Okay, start. Gentlemen, I think that the scarcity topic was very good. So my suggestion is that we should go with that theme. And I think that because the means scarcity as it is suggested that means the villagers
the facility that should be given to the villager is a very good topic. I think we can also add the point of COVID-19 to the story as well, because it is an ongoing pandemic. So we can also say that lectures were organized and drives were taken out in the village to educate people about COVID-19. Yeah, but gentlemen, in my point of view, there are people without wearing masks. So we can't include the theme of COVID. It should be not matching with the theme of the story, in my point of view. So can we change the theme of story? But we can also add this, na, ki, they are educating people to wear masks. They started educating people, didn't know about it, but after that they Yeah, I can. agree with you, but also the hero of the story is not wearing a mask. Yeah, we can add the theme of the story related to the COVID, but in my point of view, the mask should be necessary in the story. So The mask is compulsory. yeah, if the case is Mask is compulsory. but I think the theme of the story should be related to the water scarcity also. This is also a good theme, and the importance of library is also a good theme. But in my point of view, the most important theme should be the scarcity of water, as the season of summer is coming. So what are your point of views, guys? I'm agree with you, Chirag, because the main person who came out of from village, he's not wearing mask, and in the way he don't ask of the sarpanch about the vaccine and doing something, because these types of conversation are doing in a silence and in a other mode, because they are in the mode in the way of a village. I think he asked about the way of anywhere and asked something. Sir, I agree with the Chirag, because what you're saying that is true, but in the villagers there are very critical problems for the water. So gentlemen, are you all agree with the theme of the scarcity of water? Yes, I agree with you, Yes, I also agree, because but we the can very critical problem also. in the water in the village. Okay, stop. Who will represent the group story, gentlemen? Any one of you can represent the group story. Decide fast and represent. I think the theme of the story was given by Mr. Dhananjay Kumar, so he should be the one to represent the group story. Okay, I shall present it. So, Okay, Dhananjay, start. Yes, sir. So I perceived 5 characters from the image, in which I chose my hero to be SJM Aditya Singh, who is a 28-year-old male with neutral mood. So when Aditya Singh visited the village Rampur, he met with the Sarpanch and the other few people of the village who highlighted the problem of water scarcity that they were facing. So to deal with the problem, SDM Aditya Singh, he ensured regular supply of water tankers until a permanent solution was Okay, found. stop. So Stop, gentlemen, stop. Okay, ठीक है, हो गया. Sir, can you listen me? Yes, I am listening everybody. Now, Sir. of your, यहाँ बोलो, नवप्रीत बोलिए. सर मैं ना दोबारा कनेक्ट करने लगा हूँ, मुझे आपकी ना किसी की वॉइस नहीं आ रही थी और ना ही मेरे को वीडियो आ रही है अभी. हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा. अभी मेरी आवाज आ रही है, ये बताइए. हाँ सर, अभी आवाज तो आ रही है पर वीडियो नहीं आ रही किसी की भी. ओके, माइक ऑफ करो सभी. माइक ऑफ कीजिए. आवाज सुन पा रहे हैं, इतना बहुत. अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं, ऐसा कोई बच्चा आप में जो आवाज ना सुन पा रहा हो, मत बताइए माइक ऑन करके, क्योंकि सर आपकी आवाज नहीं आ रही और सबको आवाज आ रही है. देखो बच्चों, आपका स्टोरी नरेशन मैं अगर बात करूं रजत से, रजत अभी आपको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. अगर नंबर की बात करें, अगर आपको नंबर बहुत ही ज्यादा, अभी हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अभी
एवरेज से भी डाउन है, तो इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं तो मार्क्स नहीं दे रहा किसी को भी। अंजू की बात करें तो अंजू आपका भी हमारा परफॉर्मेंस स्टोरी नरेशन की अगर मैं बात करूँ तो अभी वो बिलो एवरेज है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। धनंजय आपका स्टोरी नरेशन एवरेज था, नवप्रीत एवरेज था, चिराग एवरेज था, सुश्रुत आपका भी बिलो एवरेज और एवरेज के बीच में, यानी कि बिलो एवरेज से थोड़ा सा ठीक है, एवरेज से थोड़ा सा कम है, बिलो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। ये हैप्पी ग्रेडिंग है स्टोरी नरेशन की। और रही बात ग्रुप डिस्कशन की, तो ग्रुप डिस्कशन में आप सभी अगर इस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे तो यू ऑल वर स्क्रीन आउट इन माय रिजल्ट, ऑल वर स्क्रीन आउट, आप सभी स्क्रीन आउट थे, अब में से एक भी बच्चा स्क्रीन नहीं होगा। क्लियर है? क्यों नहीं होगा, इसके रीजंस क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ये इनफॉर्मल टाइप का डिस्कशन होता है, आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, सब लोग जब बोल रहे थे, ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, आप इसको सुनिएगा, मैं आपको इसको प्रोवाइड करवाऊंगा, आप देखिएगा आपका परफॉर्मेंस बोलते हुए क्या था। आप बोल रहे हैं बट कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहे, कहीं कहीं चिराग अच्छा परफॉर्म कर रहा था और लेकिन वो भी कॉन्फिडेंट नहीं था। मुझे आप में से एक लीडर चाहिए, मैं उस बच्चे को स्क्रीनिंग करने वाला हूँ जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है। चिराग वेट कर रहा था कि दूसरे बोले, लेकिन दूसरा कोई बोल नहीं रहा है, तो चिराग तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो तुम इस टॉपिक को लीड करो, आप इसमें कंटिन्यू बोलो। आपको कोई भी डिबेट नहीं कर रहा है यहाँ पे, आपका कोई टाइम नहीं छीन रहा है, क्योंकि सब लोग सुनने वाले बैठे हैं, कोई बोलने वाला था ही नहीं। तो दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आपको मैक्सिमम बोलना चाहिए था और सबको कन्विंस करना चाहिए था। सबके सब रेडी बैठे हैं आपके साथ कन्विंस होने के लिए। अंजू भी, नवप्रीत भी, नवप्रीत के साथ क्या हुआ पड़ा है, सुश्रुत भी, चलिए नए बच्चे हैं, रजत भी, ये तो सब आपको सुनने वाले थे। रजत तो एक वर्ड भी नहीं बोला, जैसे मामा की बारात में आया हो यहाँ, भगा देंगे पहले दिन, वहां से उठा के फेंकेंगे बाहर, ऐसे अफसर बनोगे। मुझे एक लीडर चाहिए तुम में से जो सबको मैनेज कर सके। बैलेंस, चिराग बैलेंस ही नहीं किया। चिराग सिर्फ सुन रहा था और अपनी बात रख रहा था, सुन रहा था, लेकिन सुनाने वाले बहुत कम थे। और चिराग वेट कर रहा था कि कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, लेकिन जब कोई नहीं बोला तो आपको लीड करना है सिचुएशंस को। जीडी लगी नहीं रहा था, जीडी तो था ही नहीं, ये तो ये था कि जैसे मैंने पता नहीं आपको क्या काम दे दिया, मतलब सोच सोच के बोल रहे हैं, सोच सोच के, किसी के पास कुछ बोलने के लिए था नहीं। बता दो आप में से किसी के पास कुछ बोलने के लिए हो और आप बोलो कि सर मुझे टाइम नहीं मिला, मेरे पास बहुत कुछ था बोलने के लिए, बोल ही नहीं पाया। स्टोरी जिस तरीके से आप लोगों ने लिखी है, दिस इज नॉट अ गुड, नॉट अ प्रॉपर वे। जो आपने स्टोरी नरेट किया, ये स्टोरी नरेशन का भी एक प्रॉपर वे नहीं था। स्टोरी नरेशन में आपको क्या करना होता है, स्टोरी को, मैंने आपने मेरा लेक्चर देखा होगा टेट का और पीपीडीटी का, स्क्रीनिंग टेस्ट का और टेट का लेक्चर देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से बताया है कि स्टोरी लिखते कैसे हैं। उसका एक ओपनिंग पार्ट होता है 20%, फिर एक मिडिल पार्ट होता है, फिर एक एंडिंग पार्ट होता है। ओपनिंग पार्ट में हमें क्या बताना होता है, नेम, एज, प्रोफेशन, हीरो का, सॉरी, नेम और प्रोफेशन और उसका एम क्या है, ये ओपनिंग पार्ट में बताना होता है। नेम, प्रोफेशन, वो करता क्या है और उसका एम क्या है, ये सबका ऑलमोस्ट ठीक था स्टार्टिंग में। मिडिल पार्ट में एक्शंस बताने होते हैं, कुछ एक्शंस बताइए, लेकिन कुछ एक्शंस नहीं बताए, किसी ने नहीं बताए एक्शंस कि मेरे हीरो ने अपने एम को अचीव करने क्या क्या किया। चिराग ने ट्राई किया, लेकिन चिराग तुम्हारा बिल्कुल फोटोकॉपी लग रहा है बुक का, अरिहंत की बुक का, इसलिए तुम्हें नंबर कम मिले। बिल्कुल एज इट इज थीम चुरा के एज इट इज फोटोकॉपी चेप दिया। तो जो चिराग की जो स्टोरी थी वो खुद की, इसकी इमेजिनेशन पे नहीं थी, इसको मैं बुक से पढ़ा हुआ मान के इसको फेल कर रहा हूँ, ठीक है। नवप्रीत का स्टोरी नरेशन फिर बेटर था कुछ, लेकिन जीडी में बिल्कुल नहीं बोला, ऐसे चुपचाप सा रहा, एक लाइन बोल के, दो लाइन बोल के, 10। जब आप जीडी में पार्टिसिपेट करते हो 30 से 40 सेकंड आपको बोलना है, बताया था, आप तो 5-5 सेकंड में ही फ्लॉप हुए जा रहे हो। मुर्गा छाप पटाखे फुस निकले, तो 5 मिनट के लिए आग लगाई, सुर हुआ फुट, बस ऐसे थोड़ी होगा। या तो बोलो मत, बोलना तो 30-40 सेकंड तक कंटिन्यू बोलिए, अपनी बात को रखिए, बोलोगे तब जब आपके से रखने के लिए कुछ होगा, रखने के लिए कुछ नहीं था। जो 10 मिनट मैंने आपको दिया था वो इसलिए दिया था कि आप अपने टॉपिक को इम्प्रूव कर सकें। अगर उसमें आप कुछ पॉइंट नहीं लिख पाए हैं स्टोरी में, तो उसको आप और इम्प्रूव कर सकें, उसमें कुछ नए आइडियाज डाल सकें। मिडिल पार्ट में हीरो से एक्शन करवाने होते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो क्या क्या एक्शन करता है, एक्शन किसी के पास नहीं थे। ये मिडिल पार्ट सबसे ज्यादा कमजोर था बच्चों का स्टोरी के अंदर, जो कोई बात नहीं, ये इम्प्रूव हो जाएगा।
आपने लेक्चर नहीं देखे या तो जो मैंने अभी पोस्ट किए थे, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8 था, उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट बताया है स्टोरी को लिखते कैसे हैं। और चिराग, आपने फोटोकॉपी नहीं करना है किसी भी बुक का। आप बुक को पढ़िए, मैं पढ़ने से मना नहीं करूंगा, उसको समझिए, लेकिन अपनी स्टोरी अपनी लैंग्वेज में बनानी है। ये तुम्हारा इमेजिनेशन होना चाहिए, ना कि बिल्कुल मैच करना चाहिए किसी बुक से। वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब 1 बाय 1 में कमेंट देना चाहूंगा। अंजू, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत कमजोर था बच्चे। बेटा आप अटक के ऊपर देख देख के बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस था ही नहीं। और सर मेरी ना मेन प्रॉब्लम मेरी स्पीकिंग की है, उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अगर तो- हिंदी में होती तो मैं बिल्कुल तो कंफर्टेबल थी। आपको किसने मना किया था कि आप इंग्लिश में ही बोलना है, हिंदी में नहीं बोलना? मैंने बताया था हिंदी इंग्लिश मिक्स आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, हिंदी बोल सकते हो, मिक्स करके बोल सकते हो। ठीक है दिक्कत सर, क्या मैं है? मिक्स यूज किया करूंगी, उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो बनेगा ना। फिर इससे हाँ इंग्लिश में तो मेरे को खुद ही लगता है कि मैं गलत हूँ इस वजह से। हाँ बिल्कुल, आप मिक्स लैंग्वेज यूज कीजिए। जब तक हमारा इंग्लिश इंप्रूव नहीं होता, लैंग्वेज को मिक्स लैंग्वेज आप यूज कीजिए। जैसे जैसे आप इंग्लिश इंप्रूव होता रहेगा, आप इंग्लिश पे आ जाइएगा। अगर आपको ऑफिसर ओके बनना है तो अपनी डेली रूटीन की लाइफ में डेली घर में भी इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दो। मत हेजिटेट करो कि घर के बंदे क्या बोलने वाले हैं, फ्रेंड क्या बोलने वाले हैं, मत हेजिटेट करो। 24 आवर्स इंग्लिश को यूज कीजिए। और जहां इंग्लिश यूज करने में अटकते हैं उसका मीनिंग मेरे से पूछ लीजिए कि सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस सेंटेंस को। मुझे घर में सेंटेंस बोलना था लेकिन मुझे पता नहीं चला इसको बोलते क्या है। 24 आवर्स आपको इंग्लिश बोलना होगा अगर आपको इंग्लिश पे कमांड करना है। इंग्लिश बोलने से ही आएगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। अगर आप अटक अटक के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स में भी अटक रहे हैं, तो आप कभी भी स्क्रीनिंग नहीं हो पाओगे बच्चे, कभी भी नहीं हो पाओगे। अफसर बनना दूर की बात है। तो सबसे पहले हमारी आज का जो ये परफॉर्मेंस था आप खुद देखिएगा। हालांकि नवप्रीत में स्टेमिना है, चिराग में स्टेमिना है, धनंजय में मुझे स्टेमिना लगा, बाकी आप तीन तो चलो नए बच्चे हो, लेकिन आज आप भी तीनों के दिन स्क्रीन आउट हो इस परफॉर्मेंस के थ्रू। क्योंकि ये वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ अभी, जस्ट जैसे लेक्चर खत्म होगा 10 मिनट के बाद आपके पास ये आ जाएगा लिंक यूट्यूब पे। आप इसको देखिएगा और अपनी कमियों को एनालाइज कीजिएगा ताकि आप कल की क्लास में गलतियां ना करें। कल एक अलग पिक्चर पे बात होगी, वैसे ही स्टोरी नरेशन होगा, वैसे ही जीडी होगा, लेकिन ये करना कैसे है। लेक्चर नंबर 7, 8 मेरा देख लीजिए। मैंने कल पोस्ट भी किया था, जो आज नए बच्चे आए हैं मैं उनको पोस्ट भी कर दूंगा, आप उसको देखिए ध्यान से, उसमें मैंने क्या बताया हुआ है। उसको देखने के बाद फिर आप दोबारा से कल प्रैक्टिस में आइएगा। जीडी में हमें खुल के बोलना होता है, सोचना नहीं होता। और एक लीडर चाहिए होता है। जब मान लो ग्रुप बोल ही नहीं रहा है तो फिर आपके पास है जो भी स्टेमिना आपने लिखा है स्टोरी के अंदर, आप उसको लीड कीजिए। जब कोई बोल ही नहीं रहा है तो आप भी नहीं बोल रहे हैं, आप भी रुक रुक के सोच सोच के बोल रहे हैं, अटक अटक के बोल रहे हैं, तो आप भी उनके तरह स्क्रीन आउट हो जाओगे। अगर ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, फिर बैलेंस करने की जरूरत होती है, मैनेज करने की जरूरत होती है कि हाँ भाई चलो सब लोग बोलने वाले हैं यहाँ पे, फिर हमें टाइम का मैनेजमेंट देखना होता है। जब कोई बोल ही नहीं रहा तो फिर तो टीम को लीड करो ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब ये सारे सिपाही ऐसी हैं जो कंफ्यूज हो गए पाकिस्तान में जाके कि कहाँ भागे। सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि कोई रास्ता बताएगा, कोई रास्ता बताएगा, सारे मारे जाओगे। जब सब कंफ्यूज हुए हैं, मुझे पता लग गया मेरी टीम में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो यहाँ पे लीड कर सके इस पूरे ग्रुप को, तो फिर खुद लीड करो, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और लीड करो इस टीम को। किसी ने भी पूरा यानी कि ओपनिंग पार्ट भी आप लोग डिसाइड नहीं कर पाए हो ग्रुप डिस्कशन में, मिडिल पार्ट और एंडिंग पार्ट तो बहुत दूर की बात है। थीम पे ही आप लोग अटके हुए थे और वो भी अनकॉन्फिडेंट वे से, कॉन्फिडेंस नहीं था किसी को भी रिप्रेजेंट करने में। इस तरीके से वहां पे आप स्क्रीनिंग नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान से अपनी परफॉर्मेंस आप कैसे देख पाओगे, जब आप ये लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या मिस्टेक हो रही थी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही हम बात करेंगे। जिन बच्चों के लिए क्लास जो भी आज नहीं आई, 3 बजे किसी का टाइम क्लास नहीं करता, मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास स्टार्ट करता है। रात को कोई एक टाइम रखें, माइक ऑन कीजिए अपने, रात को एक टाइम रख लेते हैं। आज करीब 15 मिनट का एक क्लास है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और उसमें आपको ये मान के चलिए कि हम 7 बजे क्लास रखें। 7 PM इज राइट टाइम। ऑल हाँ आर जी सर। यस सर। जी सर। आज आपकी 7 बजे एक इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास होगी जिसमें आप सभी अपना इंट्रोडक्शन बढ़िया से तैयार करके रखेंगे। उसके बाद मैं आपको एक लेक्चर दिखाऊंगा, वो लेक्चर आपको सुनना है। इतना सा आपका काम होगा, ठीक है।
तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। और अपना ये लेक्चर अभी देखिएगा, 10 मिनट के बाद आप तक अवेलेबल होगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक की है और मैंने क्यों सबको स्क्रीनिंग में फेल किया है। आप अपना परफॉर्मेंस देख के खुद से ही आइडिया लगा पाएंगे कि हाँ वाकई में ही ये गड़बड़ था। जबकि इसमें, इस ग्रुप में 2 या 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो स्क्रीनिंग हो सकते थे अगर वो ग्रुप को लीड करते। नवप्रीत समझे? Yes, sir. चिराग समझ में आई बात? कहाँ गड़बड़ है? जब कोई एफर्ट नहीं कर रहा है ग्रुप में बोलने का, तो फिर तुम्हें एफर्ट करके ग्रुप को ग्रुप स्टोरी तक लेके जाना है। फिर मैक्सिमम तुम्हें ही बोलना पड़ेगा। एक बात समझ लो बच्चों, जिस बच्चे में 3 चीजें नहीं है वो कभी भी ऑफिसर नहीं बन सकता। 3 चीजें। नंबर 1 बात, पहली बात, इमेजिनेटिव माइंड। अगर आप इमेजिन करके सोच नहीं सकते तो समझ लो ऑफिसर के आप बहुत दूर हो। इमेजिनेटिव माइंड हमारा होना चाहिए। कॉपी पेस्ट वाला माइंड कामयाब नहीं है। अगर आप बुक से पढ़ के कॉपी पेस्ट करके कुछ भी चिपकाओगे तो ऑफिसर्स वहां पे मूर्ख नहीं है, वो दे आर वेरी हाईली इंटेलिजेंट एंड ट्रेड ऑफिसर, वो पकड़ लेंगे आपको। दूसरा, इमेजिनेटिव माइंड होना चाहिए, इमेजिन करना आना चाहिए। दूसरा, हमें होना चाहिए एक्सप्रेसिव नेचर। एक्सप्रेसिव का मतलब, जब मैं बात को रोकूं तो बिल्कुल ऐसे अंदर आग लगी होनी चाहिए कि मुझे बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है और मुझे टाइम चाहिए बोलने का। एक्सप्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब आप बोलो तो ऐसा होना चाहिए कि 10 लोग आपको सुने। ये कला होनी चाहिए बोलने की, एक्सप्रेसिव नेचर। आप सारे के सारे आज की जीडी में एक्सप्रेशन में मारे गए हो। इमेजिनेटिव उसका ठीक था, लेकिन इमेजिनेटिव से बात नहीं बनेगी। आपने सोच लिया है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो भी आप फेल हैं। स्क्रीनिंग में उस कैंडिडेट को करूंगा जो इमेजिनेटिव होगा, जो एक्सप्रेसिव, जो खुल के बोल सकता है, शेर की तरह दहाड़ सकता है टीम के अंदर, वो चाहिए। और तीसरा, प्रैक्टिकल रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी। जो कुछ वो बोल रहा है वो प्रैक्टिकल में कितना पॉसिबल है। अब जैसे नवप्रीत ने स्टोरी बना दिया कोरोना के ऊपर, लेकिन मास्क नहीं है उसके पास। अच्छा पॉइंट पकड़ा ग्रुप ने, अच्छा पॉइंट पकड़ लिया ग्रुप ने कि मास्क नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं नवप्रीत थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा तुम्हारे। ठीक है, तुम्हें थीम चेंज करना चाहिए इसका कुछ और। एक चीज देखिए, गांव में एजुकेशन की बात करते हैं हम लोग, ऐसे आज कितना प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी, चिराग तुम्हारी स्टोरी का कितने लोग होंगे आज जो गांव में जाके गांव वालों को पढ़ाते होंगे? एक भी लोग ऐसा नहीं है जो गांव में जाके गांव वालों को पढ़ाता हो पूरे हिंदुस्तान में, 1% भी नहीं है। तो यानी कि तुम्हारा इमेजिनेटिव ठीक था, एक्सप्रेशन भी ठीक था, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के ग्राउंड में तुम मारे गए। वो चीज प्रैक्टिकल पॉसिबल कहाँ है? क्या आप हरियाणा में रहते हैं, क्या आपके गांव में ऐसा कोई है आपने देखा कि जो आसपास के गांव में जाके लोगों को पढ़ा रहा हो? प्रैक्टिकल कहाँ है चीज? मतलब कि तुम कहीं से चीज को चुरा के पढ़ रहे हो। समझ गए मैं क्या बताना? जो आप बोल रहे होते हैं उसका कम से कम 20, 30, 40% प्रैक्टिकल तो हो ग्राउंड में, 10% प्रैक्टिकल तो दिखे कि देखो जी 2% लोग ऐसे हैं जैसे कर रहे हैं मेरे गांव में। अगर आप ये बात प्रूव कर पाते हो तो देन वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अभी कोरोना आ गई, लड़का मास्क लगा के हुआ होता और ग्रामीण को समझा रहा होता तो नवप्रीत का थीम बिल्कुल अप्रोप्रिएट था। बहुत सारे वॉलंटियर्स गांव में गए हैं, उन्होंने लोगों को बताया है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी गए हैं जिन्होंने बताया है कि आप कोरोना के टाइम में अवेयर रहिए। तो प्रैक्टिकलिटी पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करता ऑफिसर आपसे वहां। अगर आप वीडियो देखोगे ना आपको हंसी आएगी आपकी परफॉर्मेंस पे, इसलिए मेरी लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बोलने से हो सकता है कुछ चीजें मैं उस तरीके से ना समझा पाऊँ जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ, आप उस तरीके से ना ले पाए, ऐसा पॉसिबल। इसलिए आप जब खुद का परफॉर्मेंस देखेंगे आप खुद देखिए कि यार ऐसा ऐसा ऑफिसर हमें फौज में चाहिएगा जैसा मैं बोल रहा हूँ। तो आपको अपना कम्युनिकेशन बेस्ट से नहीं एक्सीलेंट करना होगा, पहली बात। कोई नहीं कहता आप इंग्लिश में बोलिए, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुल के तो बोलिए। जब आप बोले मरे मरे से, डरे डरे से लगे जैसे पता नहीं कहाँ बैठा दिया सबको, ऐसा लग रहा था। और ये सब रिकॉर्डेड है, ये प्रूव्ड है, और ये आपको प्रूव भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं क्लास ओवर करता हूँ। और इसको देखने के बाद कल दोबारा से हम 10 बजे इसको दोबारा से नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन तैयार रखिए और कल एक जीडी करेंगे। जीडी का टॉपिक होगा कोरोना वायरस। जीडी का टॉपिक होगा कोरोना वायरस। और जीडी के एक मैं आपको और बात बताना चाहूंगा, बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक आपको दिया हुआ था ग्रुप डिस्कशन के लिए, वो हम रात को 7 बजे ग्रुप डिस्कशन करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी ये टॉपिक कहाँ मिलेगा आपको? अपने ऐप में जाइए, ऐप के अंदर आप सबसे लास्ट में एसएसबी बैच में जाइए। एसएसबी बैच में लास्ट में ऑप्शन है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के अंदर जीडी में टॉपिक ऑलरेडी दिए हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी, तो आप वहां से अपनी पीडीएफ पढ़ सकते हैं। और वीडियो सेक्शन में जाके
एसएसबी बैच के वीडियो सेक्शन में जाके आप बायोटेक्नोलॉजी की वीडियोस देख सकते हैं। और शाम को 7 बजे आपका बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर एक ग्रुप डिस्कशन होगा और उसके बाद हमारी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास रहेगी, इसको आप तैयार रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक को तैयार रखिएगा, ये आपके ऐप में ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके दोस्तों, अगर आप हमारे इस तरह की प्रैक्टिस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी SSBP लिख के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9017909920 नंबर के ऊपर, और आप इस प्रैक्टिस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, जय हिंद।